Good morning, student. Yesterday we will solve the assignment model example from Hungarian method. First example we will solve for matrix, for square matrix. That means 4 by 4 matrix. Matrix is square. That means balance the matrix. Today we will solve the non-square matrix. Non-square matrix example. That means jobs and workers. Jobs are ABC and worker is 1, 2, 3, 4. Value is 110, 140, 60. Second row is 80, 100 and 110. Third row is 90, 120 and 70. And fourth row is 100, 130 and 80. So here we will see the matrix is not a balance. That is not a square matrix. It's a 4 by 3 matrix. 4 row and 3 column. One column is missing. So we will add the dummy column, that means D. Here we will see the dummy column. Here we will add dummy column D and resources value is 0, 0, 0, 0. Now our matrix is balance. That means 4 by 4 matrix. Same procedure, assign the matrix from subtract. First step is balance the matrix. Second step is minimum value is each row in each column is subtracted by each value. First row minimum value is 60. First row minimum value is 0, second row 0, third row 0, fourth row 0 and each row minimum value is 0, but each column minimum value is not a 0. The first column minimum value is 80. 80 subtract to first column from each value. Then 110 minus 80, that means 30. 80 minus 80, 0. 90 minus 80, 10. And 100 minus 80, that means 20. Second column minimum value is 100. 100 subtract by each value. 140 minus 100 is equal to 40. 100 minus 100 is equal to 0. 120 minus 100, that means 20. And 130 minus 100, that means 30. Third column minimum value is 60. 60 is subtracted by each value of third column. 60 minus 60, 0. 110 minus 60 is equal to 50. 70 minus 60 is equal to 10. And 80 minus 60 is equal to 20. Then find out the each row in each column is 10 is required. Each row is 10 is required. Each column 10 is required. Then assign the प्रॉब्लम. जिस रो और कॉलम में हम असाइन करेंगे उस रो और कॉलम में दूसरा कोई भी ज़ीरो होगा तो वहाँ हम क्रॉस कर देंगे. फर्स्ट ज़ीरो, assign the problem. Here we will see square block and other 0 we will cross. Second row, assign first problem, first square and other 0, so we will cross. Third row, assign the problem 3 here, and if row and column, that means here last row is cross. So here we will see the last row is not assigned any. That means 3 row, first, second and third row we will assign, but fourth row is not assigned. So next step is assign. So here we will get tick mark and step 1. That means write and step 1. That means assign the problem. That row we will assign any cross value. That means here we will see any non-assignment value. That column we will assign any one assignment. That means tick mark and 3.
उसके अलावा कोई भी रो होगी वो हम एलिमिनेट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस रो में असाइनमेंट नहीं हुआ है असाइनमेंट, वहाँ टिक मार्क करके हम उसे स्टेप 1 देंगे। उस रो में कोई नॉन असाइनमेंट वाला होगा कोई भी, तो वहाँ टिक मार्क करके उस कॉलम में हम स्टेप 2 देंगे। और उस कॉलम में कोई भी एक असाइनमेंट वाला होगा, वहाँ टिक मार्क करके स्टेप 3 देंगे। उसके अलावा की जो भी कोई रो है वो हम एलिमिनेशन कर देंगे, दैट मीन्स डॉटेड कर देंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम रो में हमने देखा दोनों एलिमिनेशन हो गई, डॉटेड हो गई। तो उसके अलावा हमारे पास कितनी वैल्यू बची है? 6 वैल्यू है। 10, यहाँ हम देख सकते हैं 6 वैल्यू कौन सी है? 10, 20, 10, 20, 30 और 20। तो उसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 10 है। तो वहाँ पे हम 6 वैल्यू में से 10 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दैट मीन्स 10 - 10 0, 20 - 10 0, 10 - 10 0, 20 - 10 10, 30 - 10 20 एंड 20 - 10 इक्वल टू 10। और जहाँ भी असाइनमेंट क्रॉस होगा वहाँ हम जो भी वैल्यू सब्सट्रैक्ट करेंगे वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, कहाँ पे हमारी वैल्यू क्रॉस हो रही है देखिए, यहाँ पे हमारा असाइनमेंट क्रॉस हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड रो में, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड रो में हमारा क्रॉस हो रहा है, तो वहाँ पे हम वो वैल्यू ऐड करेंगे, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो। मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 10, तो वहाँ पे 10 ऐड कर देंगे। और फिर से हम फाइंड आउट करेंगे असाइनमेंट। तो फर्स्ट रो में हमें असाइन मिला, तो उस रो में और उस कॉलम में कोई भी दूसरा असाइन नहीं होगा, जो होगा तो हम वहाँ क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा ये 0 क्रॉस हो गया और ये भी 0 थर्ड कॉलम का क्रॉस हो गया। सेकंड रो में हम देखेंगे, सेकंड रो में हमने असाइनमेंट मिला, तो सेकंड रो का जो भी असाइनमेंट होगा, हियर हमने सेकंड लिया है असाइनमेंट 0 वाला, तो उस रो में हमें फर्स्ट असाइनमेंट ये क्रॉस कर दिया। थर्ड रो में हमें असाइन मिला, थर्ड रो में हमने असाइनमेंट मिला है ये वाला, तो उस रो में कोई भी दूसरा असाइनमेंट होगा तो हम वहाँ क्रॉस कर देंगे, ये वाला क्रॉस और ये वाला भी क्रॉस कर देंगे। और लास्ट रो में तो हमें असाइनमेंट मिल ही गया है, लास्ट रो में असाइनमेंट जो भी 0 बचा है वो 0 है, तो वहाँ भी हम स्क्वायर कर देंगे ये वाला भी। तो फाइनली जो भी हमने असाइनमेंट मिला है और फाइनल जो भी हमारा आंसर है वहाँ पे हम टोटल ऑप्टिमम कॉस्ट फाइंड कर देंगे। तो टोटल ऑप्टिमम कॉस्ट हमारा जो भी असाइनमेंट मिला है, फर्स्ट 60, सेकंड इज़ 100। यहाँ पे मेन क्वेश्चन में जो भी होगा, फर्स्ट असाइनमेंट हमें मिला है ये 60, सेकंड हमें मिला है ये 100, थर्ड असाइनमेंट हमें जो मिला है वो है 50 और लास्ट असाइनमेंट जो भी है हमारा वो 0 है। लास्ट असाइनमेंट हमारा ये 0 है। थर्ड असाइनमेंट हमें मिला है फर्स्ट वाला ये 90। तो उसका टोटल ऑप्टिमम कॉस्ट होगा हमारा 250 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का असाइनमेंट बाय सोल्व हंगेरियन मेथड। फर्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व किया था ना स्क्वायर मैट्रिक्स का yesterday, और टुडे वी विल सॉल्व ऑल्सो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, dummy row and dummy column we will add and solve by Hungarian method. Thank you.